Welcome everyone to today's podcast. I'm Yatharth Patankar, your host, and today we have an incredible and inspiring guest with us, Mr. Harshvardhan Singh, an alumnus of Acropolis College, successful entrepreneur and a founder of companies like Hyperbuy and Edvivo International Education Consulting. Thank you, sir, for joining us today. Thank you so much. Thank you so much for inviting me on this amazing, journey or on this amazing discussion by Acropolis itself. So, sir, my first question to you is to sir, could you take us back to your college days? How did your time at Acropolis College shape your career path? Means मतलब कि आपकी जो entrepreneurial journey थी वो कैसे start हुई and कैसे कि आपने पूरा Acropolis से कैसे करा? Well, I started my journey with Acropolis. It was my career's next journey, which we call bachelor's journey. So it was an amazing time, and Acropolis के first mechanical batch के students हैं हम, and I was the first like मैं ये कह सकता हूँ कि मैकेनिकल बैच फर्स्ट मैकेनिकल बैच का स्टूडेंट था मैं 2008 टू 2012 मैकेनिकल बैच वाज अमेजिंग. इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड क्योंकि ब्रांच नहीं थी कॉलेज की, सो वी हैड सो मेनी ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो जो जर्नी रही बहुत अच्छी रही, और ये क्या ये यू कैन से दैट के वी गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन. Out of that, the major journey was Baha SA India, which we started from, with the help of Mr. SK Sohani sir, who was the HOD of civil department. उनकी हेल्प हमें बहुत मिली. सौरभ जैन सर की भी हेल्प हमें बहुत मिली मैकेनिकल डिपार्टमेंट से. गौरव सुजातिया सर की हेल्प बहुत मिली. कॉलेज वाज वेरी मच सपोर्टिव, टू बी वेरी फ्रैंक. आई विल बी वेरी फ्रैंक इन दिस के मुझे कॉलेज से बहुत सपोर्ट मिला. एंड कॉलेज से जो सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट ने हमें एक अच्छा लीडरशिप हम मुझे एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिली. बाहा में लीड करने को मिला. बाहा में अच्छा परफॉर्म करने को मिला. एंड एक कॉलेज का नाम करने को मिला. वी स्टार्टेड विथ बाहा ऐसे इंडिया एज अ वॉलंटियर. हमने स्टार्टिंग के 2 years वॉलंटियरशिप करी. Then finally we participated along with my friends in the batch. 25 की टीम थी हमारी. So वहाँ से एक लीडरशिप जर्नी स्टार्ट हुई where I was leading the team, and then we participated, we manufactured an ATV, and डिपार्टमेंट के और भी लोगों का उसमें हेल्प करना बहुत अमेजिंग था. और बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना. एंड क्योंकि ये सब चीज़ें नई थी हमारे लिए, और ये बहुत ही डिफरेंट था सिनेरियो, तो दूसरे कॉलेजेस में जाके नॉलेज गेन करना, देन उसको अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना, देन दूसरे ब्रांच के लोगों का उस प्रोजेक्ट को देखना, वहाँ पे आके उसको ऑब्जर्व करना, वो हमारे लिए इतना अमेजिंग था कि शायद बहुत कम बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते होंगे. सो आई कैन से दैट इट वाज अ टोटली यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड कॉलेज में, if you are getting that kind of environment where you are learning leadership skills, and if you are getting permitted by the school college authorities to work on the project day and night, you can stay at the college, you will have all the food facilities, all other facilities as well. So you can say that your growth is very much guaranteed in the later years. So इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि शायद ये मेरी जर्नी मुझे आगे बहुत हेल्प करने वाली है. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड feeling the factor that yes, I am learning, or I am starting to learn something new in terms of entrepreneurship, leadership, and everything. So मेरे ये 4 साल I utilized these 4 years very amazingly, and very you can say uh, exciting 4 years of my mechanical engineering. Okay, sir. So, sir, as you told that you got to lead the Baha team, so it was there that when you started your entrepreneur, that you got to know that since I can lead this team, so I can be an entrepreneur and I can start a company. Mhm. Uh,
सो what आई कैन से इज के बाहा में आई वाज द बाहा का जो फ्यूचर रहा है अभी तक एक्रोपोलिस में, तो आई कैन यू नो ग्रेटफुली से दीज थिंग्स के आई वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ फ्रॉम माय कॉलेज when it comes to Baha ऐसे इंडिया बाहा कॉलीगेट क्लब ऑफ एक्रोपोलिस. तो आई वाज द फर्स्ट कैप्टन. आई वाज आल्सो द फाउंडिंग टीम मेंबर ऑफ कॉलीगेट क्लब, राइट. तो वहाँ पे कैसे लोगों को अपने कॉलीगेट क्लब में ऐड करना, उनको आपके आपकी पूरी जो कम्युनिटी है उसमें आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों को यू नो ज्वाइन करवाना और एक अच्छा एक ग्रुप क्रिएट करना एंड दूसरे लोगों को तैयार करना, प्रिपेयरिंग अदर्स फॉर द सेम एंड हेल्पिंग देम टू find an opportunity to work with Baha, how they can be a part of, like suppose अगर हम लोग आईटी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, तो हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ बाहा ऐसी इंडिया, उन्हें एक्सप्लेन करना हाउ दे कैन पार्टिसिपेट, हाउ दे कैन गिव देयर बेस्ट इनटू द टीम. सो ड्यूरिंग दीज यू नो ड्यूरिंग दिस जर्नी बाहा ने बहुत कुछ सिखाया, नो डाउट. एंड कॉलेजेस की डिफरेंट डिफरेंट अदर एक्टिविटीज ने भी बहुत कुछ चीज़ें यू नो मुझे सीखने पे मजबूर भी किया कि I should get out of my shell and I should be this person, I should be that person, I should be dealing in this way so that my event will be successful, I should be doing this way. So in there are lot of such events. अगर मैं उनको लिस्ट आउट करने बैठूं तो शायद हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा चला जाएगा, सो Yes. विच आई थिंक विल नॉट बी अ गुड आइडिया. सो ऑल इन ऑल आई कैन से कि यस, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, तो मुझे वो मिली. और जिसने धीरे 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 एक एंटरप्रेन्योरशिप के सारे जो चेकलिस्ट होती है, उन चेकलिस्ट को धीरे धीरे टिक मार्क करने में मुझे हेल्प करा इन सब अपॉर्चुनिटीज ने. सो यस, दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. Okay, sir. So, sir, now let's talk about your first startup, Edmivo. What was या the inspiration behind starting this educational consulting firm? ओके, द इंस्पिरेशनल फैक्टर इज totally belong to my father. The factor is my father was in education sector, and as he was into education sector, I was always inspired by the fact that he always wanted something great for the students whenever he was visiting the schools, all the schools, and whenever I was able to see him discussing with the teachers, faculties, other people in the school. So मैंने वो एक आइडिया उन्हें देख के ये सीखा कि किसी के करियर को प्रॉपर शेप देने में और उन्हें आगे फ्यूचर में उस लेवल को अचीव करते हुए देखने में जो खुशी मिलती है, उससे अच्छी खुशी कहीं नहीं मिलती. सो I was very much attracted to the blessings that I will be receiving when I will be placing a student into top university, and that student will be calling my name कि हर्षवर्धन sir has done this much great things in my life कि मैं आज इस university में हूँ. So I was very much attracted to this fact. And this blessing, this kind of blessing was very much important to me, and मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि किसी की लाइफ में अगर हम एक थोड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं एट द लेटर स्टेजेस, वो स्टूडेंट और वो एप्लीकेंट और वो क्लाइंट, हम जो भी कहें, वो अपनी लाइफ में वो इतना बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प, अपनी फाइनल की अपब्रिंगिंग या फिर उनकी ग्रोथ, उसकी खुद की अपब्रिंगिंग या फिर उसकी फ्यूचर ग्रोथ में वो इतना बड़ा रोल प्ले कर लेकर करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्मॉल हेल्प के मैंने उसको हेल्प करी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने में. सो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉज अट्रैक्टेड टू अ लॉट. और एडमीवो इज ऑल अबाउट admissions consulting, where I counsel student. I give them the best idea how they can enter into top universities in the world, how they can shape their future with the help of those top universities. So ये जो all in all जो bundle of opportunities थी, ये bundle of work था, skills बोल लें हम, I was very much attracted to these things. So I
ऑल इन ऑल आई कैन से कि कंसल्टिंग इज समथिंग विच आई रियली लव. So that's the reason ke I enter into different ventures where I am also currently consulting other startups as well, where how they can grow, how they can pitch to investors, how they can raise funds, how they can run their startups with bootstrap idea without taking funds. So ये कंसल्टिंग देना मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगा कि किसी को सजेशन देना और सजेशन से एक नया रिजल्ट आउटपुट आना. इट वाज समथिंग वेरी अमेजिंग फॉर मी, एंड रिजल्ट्स अचीव करना इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट. तो ऑल इन ऑल एडमीवो के पीछे एक अच्छी कंसल्टिंग, एक अच्छा गाइडेंस, और उस गाइडेंस से एक अच्छा रिजल्ट आउटपुट निकालना इज समथिंग जो मुझे हमेशा से अच्छा लगा, और एडमीवो की सक्सेस का रीजन भी यही बना. And Okay, I'm sir. passionate about my first startup, which is Admivo. So yes, it's been 9 years now. They're truly inspiring. So, sir, behind a great success, there is a multiple challenges. So, Yeah. what were the biggest challenges you faced in the early days of Admivo, and how did you overcome them? Okay. दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन. ये एक स्टार्टअप की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वेन एवर पीपल आस्क मी के हाउ यू हैंडल्ड इट. सो जो हर्डल्स थे, यू कैन से दैट के first hurdle is I am the first entrepreneur out of my family. There is not at all a single person in my family, or you can say कि मेरी पिछली 3 generations में there is no entrepreneur. There is no businessman, there is no business background. My father was a job person, government job थी उनकी. मेरे मेरे और भी uncles and और भी मेरे जितने भी relatives और family people है, all are into jobs. So I am the first entrepreneur out of my family. So एक एंटरप्रेन्योर के लिए मेंटरशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाता है. तो मेरी मेंटरशिप मुझे जो फादर से मिली वो थे उनके प्रिंसिपल्स, कि मुझे एक अनबायस्ड काउंसलर बनना है, वो मैंने लिया. एक अच्छे करियर को शेप देना है, वो मैंने उनसे लर्निंग ली. बाकी रेस्ट ऑफ द मेंटरशिप जो होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हाउ टू सस्टेन इन द मार्केट, हाउ टू ब्रिंग सेल्स, हाउ टू रन, हाउ टू मैनेज एम्प्लॉयज. फर्स्ट जो ये था कि आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी. आई वॉज द ओनर, आई वॉज द क्लीनर, I was the counselor, I was the digital marketing guy, I was the marketing guy, I was the sales guy. So I was everything. उस पूरे एक फर्स्ट ऑफिस में फर्स्ट इनिशियल 6 मंथ्स मैंने घर से बैठ के ये स्टार्टअप को शुरू किया. फर्स्ट 6 मंथ्स में आई क्रैक्ड फर्स्ट एडमिट. दैट फेज वाज इजी क्योंकि ज्यादा क्लाइंट्स नहीं थे. देन व्हेन पीपल स्टार्टेड आस्किंग के सर आपका ऑफिस कहाँ है, तो देन एक क्वेश्चन और आने लग गया कि नाउ ऑफिस दिखाना पड़ेगा अब तो. Then after 6 months, I realized that I should have my office. So in 2016 December, I opened my first office at Kanadia Road, and उस ऑफिस में still I was the first employee and I was the only employee जो एक टेबल पे एक अकेला बैठता था. एंड वो जो जर्नी थी वो टोटली डिफरेंट थी. वो क्यों डिफरेंट थी मैं बताता हूँ. उसमें ऐसा होता था कि मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया, ऑफिस सेटअप कर लिया, मैं एक अकेला एम्प्लॉय हूँ. whenever somebody is coming to my office and they are visiting के and they are seeing कि I am the only one sitting in the office, they were like कि वो वहीं से स्टेयर से वापस रिटर्न हो जाते थे. एंड उन्हें देख के जो फील आता था, एक 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 फीलिंग ऑफ रिजेक्शन जो फील होता था, वो बहुत ही वो स्वैलो करना बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे. कि हाउ पीपल विल फाइनली कम एंड सिट इन द ऑफिस व्हेन दे आर सीइंग कि मैं ही एक एम्प्लॉय हूँ, मैं ही उनके लिए ग्लास ऑफ वाटर लेके आ रहा हूँ, मैं ही उनके लिए फैन ऑन कर रहा हूँ, उन्हें वो फैसिलिटीज दे रहा हूँ. वो जर्नी मेरी बहुत ओवर थिंकिंग वाली थी, और बहुत ही यू कैन से इट वाज फिल्ड विथ हाई रिजेक्शन रेट. many people used to just look at the aura of the office and वो रिटर्न हो जाते थे. तो ये वाला फेज बहुत डिफिकल्ट था. बट यू नो कहते हैं ना कि कुछ उन सारे लोगों में से एक ना एक आता है जो आपके पूरे ओवरऑल फॉर्चून को चेंज कर देता है, या फिर ओवरऑल जर्नी को चेंज कर देता है. तो दैट्स हाउ
few people came into my life, and they entered and they discussed, and the way they discussed, the way I answered their questions, it was totally amazing for them. And then they realized कि सर इतना सब कुछ मेरे करियर में हो सकता है। आई नेवर रियलाइज, मुझे तो सर बैंकिंग की जॉब करनी थी और मैं बैंकिंग की क्लासेस का डिस्कशन करने आपके पास आया था। और जो मैंने उनके प्लान में चेंजेस लाया, जो चेंजेस मैंने इम्प्लीमेंट करे और जो जिस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया, इट वाज टोटली अ लाइफ चेंजिंग फॉर देम। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। देन इवेंचुअली यू स्टार्टेड सीइंग पीपल कमिंग एंड दे आर वेटिंग। इट वाज अमेजिंग फॉर मी, वेयर इनिशियल स्टेज पे आई विल बी वेरी थैंकफुल टू माय मॉम जहाँ पे मॉम मेरे साथ बहुत बार कंपनी देने मुझे आती थी, क्योंकि मैं अकेला बैठता था। अकेले बैठे बैठे एक बोर्डम क्रिएट होता था, बहुत बेकार लगता था। देन मॉम यूज टू कम एंड सिट विथ मी, एंड हम थोड़ा बहुत मुझे कंपनी दे देती थी, मुझे ऑफिस क्लीनिंग में हेल्प कर देती थी। उसके बाद जो स्टेजेस आई, धीरे धीरे क्या होता है कि स्टार्टअप में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। तो नेक्स्ट चैलेंजेस जो आए, वो चैलेंजेस ये थे कि नाउ यू नीड टू सस्टेन इन द मार्केट। एक स्टूडेंट आपके पूरे रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। आपको रेंटल पे करना है, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको एक ऑफिस बॉय की जरूरत है, आपके ऊपर प्रेशर है कि एक एम्प्लॉय की जरूरत है, आपको प्रोडक्ट भी नए नए लाने पड़ेंगे अपने सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं। एज इट्स अ सर्विस सेगमेंट, तो मुझे नए नए प्रोडक्ट्स भी देने होंगे सो दैट मैं और रेवेन्यू जनरेट करके रेंटल वाली रिक्वायरमेंट, सैलरी रिक्वायरमेंट को मीट अप कर सकूं। क्योंकि एट द इनिशियल स्टेज स्टार्टअप्स में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट यू विल बी बर्निंग मनी, क्योंकि वो इनिशियल फेज ऐसा ही होता है, जो फेज मैंने एक्सपीरियंस किया था। देन एट द लेटर स्टेजेस आई हायर्ड एन ऑफिस गाय हायर हो गया। उसकी सैलरी को सोचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। देन सैलरी सैलरी पे एक एम्प्लॉय और रखा, देन उसकी सैलरी के लिए सोचना है। तो एक दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि नाउ हाउ द रेवेन्यू विल बी जनरेटेड, हाउ पीपल विल कम इनटू योर ऑफिस। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आई ऑलवेज वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टू गूगल एंड यूट्यूब। मैं अगर एक्चुअल में मेरे मेंटोर, अगर कोई मुझसे पूछे, अगर इफ यू आस्क मी कि मेरे मेंटोर्स एक्चुअल में कौन है, तो माय मेंटोर्स आर यूट्यूब एंड गूगल, जिन्होंने मुझे सिखाया कि एग्जैक्टली हाउ यू कैन हैंडल इट, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ इट वाइल यू आर इन प्रेशर। तो रेवेन्यू जनरेट करते करते वो चैलेंजेस धीरे धीरे उन चीज़ों की हैबिट होने लग गई कि हाउ यू कैन डेफिनेटली रोल इनटू दिस सेगमेंट। धीरे धीरे सैलरी मेंटेन होने लग गई, ऑफिस बॉय की सैलरी जाने लग गई, रेंटल में चैलेंजेस आए, लेकिन एक जो ऑफिस ओनर थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने रेंटल को स्ट्रिक्टली प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी। तो एक जर्नी जो होती है, इन जर्नी में ये फैक्टर्स अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो यू रिसीव अ साइन के यस, एंटरप्रेन्योरशिप वाली सेगमेंट में आप सस्टेन कर सकते हो। और आपको ये यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है कि आपके ओनर भी आपको प्रेशर नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। आपके जो एम्प्लॉयज आपने हायर किए हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सैलरी अगर उन्हें लेट मिल रही है तो दे आर ओके विद दैट, एंड दे वांट टू सपोर्ट यू। ये सब चीज़ों ने मुझे धीरे धीरे हेल्प किया। एंड एडमीवो के एक फेज को मैंने क्रॉस किया। देन जो सेकंड फेज सबसे बड़ा था इन 2020, वो फेज था सबसे डिफिकल्ट, और वो फेज था कोविड फेज। अब ये 4 साल की जर्नी, 2016 से लेके 2020 तक की जर्नी, डेफिनेटली मैंने अपनी टीम स्टैब्लिश करी, अच्छे टीम मेंबर्स को हायर किया, धीरे धीरे टीम एक अच्छे लेवल पे आके खड़ी हुई। बहुत अच्छे रिजल्ट्स की जर्नी रही 4 साल। एंड आई रिसीव्ड 2 अवार्ड्स एज वेल इन दिस जर्नी। 2020 में जब कोविड हिट हुआ, इट वाज अनदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अनदर लेवल ऑफ हर्डल। वो हर्डल था कि जहाँ पे यू आर नॉट रिसीविंग बिजनेस एंड यू हैव 5 to 10 people टू टेक केयर ऑफ, जहाँ पे उनकी सैलरी, रेंटल आ गया, और जो रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है, जो ऑपरेशन कॉस्ट आपको लग रही है ऑफिस में, वो ऑपरेशन कॉस्ट मेंटेन नहीं हो पा रही है, और उतनी ऑपरेशन कॉस्ट आपके पास आ ही नहीं रही है, और आपको सब कुछ हैंडल करना है। देन इस स्टेज पे जो हर मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली फेस करते हैं वो है प्रेशर। और वो प्रेशर होता है सस्टेन करने का प्रेशर, वो प्रेशर होता है एम्प्लॉय को मेंटेन करने का प्रेशर, और रेवेन्यू बनाने का प्रेशर। मेरे पे जो प्रेशर था वो यही था कि मेरे पास अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मैं कैसे सैलरी निकाल पाऊंगा, कैसे रेंटल निकाल पाऊंगा।
देन आई टुक अ डिसीजन, एंड देन उस डिसीजन में मैंने लिया कि आई टुक अ पर्सनल लोन। मैंने पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन लेके मैंने जो फर्स्ट फेज जो सबसे बड़ा था उसमें सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी, रेंटल पे किया। कोविड अब 1 महीने में तो खत्म नहीं हुआ था। माई लोन वॉज एग्जॉस्टेड टोटली। लोन खत्म हो गया। नाउ रेवेन्यू स्टिल नॉट कमिंग, यू स्टिल फेसिंग चैलेंजेस। देन आई अगेन टुक अ लोन। मैंने सेकेंड लोन और लिया। वो लोन लेके मैंने फिर से, मान के चलिए कि कह सकते हैं, एक सेकेंड लोन लेके फिर से मैंने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी, रेंटल मैनेज किया। देन स्टिल वो एक स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यू रहा, क्योंकि मार्च में कोविड शुरू हुआ था एंड इट वाज कंटिन्यूड अंटिल जून एंड जुलाई। तब तक लॉकडाउन चल रहा था। एंड मुझे सबकी सैलरी, सबका ऑपरेशन कॉस्ट, ओवरऑल ऑफिस का ऑपरेशन कॉस्ट मेंटेन करना था। मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। मैंने अपनी एफडी को ब्रेक किया। देन मैंने फाइनेंशियल जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसको मेंटेन करने की कोशिश करी। तो ये वाला जो फेज था वो इतना डिफिकल्ट रहा कि आई हैड नो ऑप्शन टू गिव अप, बट आई हैड अदर सेवरल ऑप्शंस के मैं इनको एट दिस पॉइंट तो हैंडल कर लूंगा, लेकिन ये बाद में मुझे बहुत परेशान करने वाले हैं। क्योंकि लोन तो आपने ले लिया, लेकिन लोन को रीपे भी करना है। सो आई टुक अ डिसीजन के लेट्स गो हेड, छोड़ो, अभी सस्टेन करना है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। बाद में बात का देखेंगे, हैंडल करेंगे। अगर यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस को मैंने, जितने भी फील हो रहे थे उन सबको मैंने ट्रैश में डाला। एंड देन मैं आगे बढ़ा, देखेंगे जो भी होगा, निपटेंगे। तो डेब्ट्स का जो बर्डन क्रिएट हुआ आगे वाले टाइम पीरियड में वो बहुत डिफिकल्ट था। एंड वो डेब्ट का जो टाइम पीरियड था 2020 तक कंटिन्यू, 23 तक कंटिन्यू रहा। हाँ, somehow I started, receiving those amazing people into my team from the universe, अगर मैं कहूँ कि जैसे जैसे मेरे स्ट्रगल मुझे सामने आ रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, या फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे और अच्छे लोग भी मिलना शुरू हुए। प्रेशर, उस चैलेंजेस को समझा और मेरे साथ काम करने के लिए वो खड़े हुए। एंड धीरे धीरे इवेंचुअली आई बाउंस्ड बैक। एंड नाउ until today I have a team of 25 people. We have an amazing office at 78 scheme, Vijayanagar, and it is one of the luxury office that we have opened, and successfully we have given 70 cr of scholarship so far. And I have received MSME National Award as an Entrepreneur of the Year 2 times, in 2023 and 2024. So this is the journey, and difficult times और hurdles को हमने swallow कर लिया और उसको देखा कि आगे हैंडल करेंगे, जो होगा देखेंगे। दिस इज हाउ आई बिकेम अ रिस्क टेकर, अ बिग बिग रिस्क टेकर। और एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकर बनना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी क्वालिटीज और सारी स्किल्स इस जर्नी में मैंने रियलाइज करी कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो ये सारी स्किल जो एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होनी चाहिए, वो आपको धीरे धीरे अपने आप में इनबिल्ट होने शुरू हो जाती है। So this is the journey. So now we are one of the top consulting in Indore segment, where we are known for top German public university admission. We are known for top Ivy League admissions, and we recently have opened in January an amazing office in 78 scheme. I Okay. know it's quite long. Yes, sir, but your journey is a true example of many codes. Like starting a company is one thing, and but scaling is another. So your journey truly reflects this, and it's also codes that solving one problem at a time. If you think of one problem and solving it is the best option we can do. And thinking of that one problem को कभी solve कर रहे हैं, दूसरी problem आ जाएगी, उसका क्या करेंगे, तो कभी पहली बार problem solve ही नहीं होगी। एंड Solve आपकी Vinod. जर्नी, वही तो आपकी जर्नी एक ट्रू एग्जाम्पल है इन सारे कोर्स का। तो सर मेरा जो Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी जो नेक्स्ट कंपनी है हाइपर बाय उसके रिलेटेड है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू डाइव इनटू दिस फील्ड ऑफ ई कॉमर्स? Okay.
सो हियर आई कैन से दैट मेरा इनोवेशन में शुरू से बहुत दिमाग चलता रहता है. इवन बिफोर एंटरिंग इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनोवेशन, R&D. ये सब चीज़ों का शुरू से मुझे शौक रहा है. तो इन चीज़ों को का कॉम्बो प्लस मेरे करंट एक्सपीरियंस का कॉम्बो मैं चाहता था कि आई शुड नॉट एंड अप विथ ओनली वन स्टार्टअप, एंड आई शुड नॉट बी जस्ट लाइक कि एक बिजनेस शुरू कर लिया, वो सेटअप हो गया, एंड देन उसी को लेके वी आर नाउ वेरी मच स्टेगनेंट और बहुत स्टेबल हैं. नो, आई आई ऑलवेज अट्रैक्टेड टू चैलेंजेस, एंड आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू समथिंग न्यू. मुझे हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, कुछ नया करने की इच्छा होती है. तो ई कॉमर्स सेगमेंट वो समथिंग जिससे मैं ज़्यादा अट्रैक्टेड था फ्रॉम द वेरी अर्ली एजेस, बिफोर इवन माई स्टार्टिंग माई इंजीनियरिंग. और ई कॉमर्स में आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू समथिंग विच इज लाइक catering to all the consumers around you and giving them what others are not able to. So Hyperbuy is an e-commerce platform where I will be, or I am bringing those kind of products which is not available or rarely available in the market, and people will be feeling happy that yes, Hyperbuy has it. जस्ट लाइक वी से कि ये प्रोडक्ट तो इसी वेबसाइट पे मिलता है, ये प्रोडक्ट तो अमेजोन पे ही मिलता है. आई वांट टू बिकम दैट काइंड ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तो हाइपर बाय ई कॉमर्स इज द ऑफिशियल नेम एंड द ब्रांड नेम इज हाइपर बाय. एंड हाइपर बाय में I am attracted to all those kind of gadgets or electronics or such kind of arts and craft or life solving products where these products are not available in the market very easily, or Hyperbuy will only have those kind of products. So Hyperbuy के पीछे यही आइडिया है मेनली. although it's an e-commerce market, और उसको स्केलेबल बनाना is the current objective right now. For the same reason, I am going to China on 10th of April. After 3 to 4 days, I'll be leaving for China. And I am going for 25 days this time. मैं अक्टूबर 24 में भी अभी चाइना होके आया था, 5 to 6 days. Okay. And अभी now I am going for 25 days and I'll be visiting China's top cities where there are major manufacturing hubs, industries. I'll be visiting many vendors and I'll be collaborating with them. Now people will say कि आप तो चाइना से इंपोर्ट करोगे, आप तो चाइना के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो. या डेफिनेटली आई वोंट हेजिटेट टू से इट कि मैं चाइना से प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ और यहाँ आई सेल इट. सेल तो सब कर रहे हैं, बट आई एम अट्रैक्टेड टू यूनिक प्रोडक्ट्स. और उन यूनिक प्रोडक्ट्स को अगर हम इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद अगर हम उन इनोवेशन को देख के अगर एट द लेटर स्टेजेस अगर हाइपर बाई खुद के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर करने लग जाए, तो व्हाट्स द रॉन्ग आइडिया, वेयर इज द रॉन्ग थिंग. सो आई डोंट थिंक कि मैं चाइना से प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ और उनको इंपोर्ट करूंगा इंडिया में, तो देर इज समथिंग रॉन्ग. एवरीबडी इज डूइंग इट. सो आई डोंट थिंक कि अगर मैं कुछ आइडियाज को अडाप्ट करके उन आइडियाज पे वर्क करके और वही प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव बना के मैं उनको इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चर करके सेल करूँ, तो आई थिंक आई एम चूजिंग द राइट डायरेक्शन और स्मार्ट डायरेक्शन, एंड सेविंग माई मनी एंड सेविंग माई एफर्ट्स, और मे बी मैं कुछ स्मार्ट डायरेक्शन यूज करके उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. तो Hyperbuy is totally dedicated to innovative products, which is life solving and which is amazing and which is very much rarely available in the market. Okay, sir. So this is the idea behind Hyperbuy. So all in all, we have total 4 ventures right now. Admivo, second is Express Writers. Express Writers is a content writing startup, or it's been 1.5 years now. In Express Writers, we are into content writing projects where even if you are interested in preparing your thesis for your projects or research papers or something like that, you will receive our consulting. If people are communicating with the universities for their scholarship, they can give that task to us. We will be helping them in terms in writing uh, perfect scholarship essays for them. So it is more like we will be helping our people in terms of resume making, LinkedIn profiles,
If they want to receive consulting related to their research thesis, we will be helping them. If they want to write an article which they want to publish in the book, we can help them. So Express Writers is dedicated to all in all content writing. Third is Hyperbuy, definitely. The fourth recent startup is which I started in the August month. It's Ronnie's Car Wash. Ronnie's is dedicated to car detailing and car care, which is an emerging market as of now. आज की डेट में कार डिटेलिंग इज वन ऑफ द वेरी इमर्जिंग मार्केट राइट नाउ. सो आई हैव इन्वेस्टेड इन रॉनीज कार वॉश एज वेल. सो ये अभी जस्ट 6 months older, you can say it's just 6 months old, and it has started taking tractions. It has started gaining traction as well, and it is now auto run. तो रॉनीज इज ऑन सक्सेस रन राइट नाउ. 6 months में ही हमने ट्रैक्शन गेन कर लिया है, एंड उसमें अब मुझे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ट्रैक्शन उसमें आने लग गया है. Okay. सो यस, So, these yeah. so sir, your like every startup has a unique idea. So, as many students dream of starting their own venture. So, what advice would you give to someone in a college who want to start and become an entrepreneur? Will he has to like I think of an idea which is every unique, or he should get something which is already in the market? Well, there is one big thing which lies in the idea that any student or any person want to start an startup. Every person has an idea. You can have an idea, Ronit can have an idea, and other people at the Acropolis College can have different idea. They are surrounded with the many ideas which can be $1 billion evaluation startup. But what happens ke they don't focus it. They just think, hey, I want to start an idea, or I just want to start a startup, and they take it very lightly sometimes, and they another day they come up with another startup idea. पहले वाले स्टार्टअप आइडिया को डम कर दिया, दूसरे वाले स्टार्टअप आइडिया में इंटरेस्ट ले लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के पास वाले फ्रेंड ने उसको एक नया सजेशन दे दिया. तो यहाँ पे इफ यू हैव एन आइडिया, एंड इफ यू थिंक ये आइडिया has created this idea is fulfilling a big gap in the market, and if you have discussed with people and they are appreciating the idea, just because of the reason कि इसको स्केल अप क्या करूंगा, इसमें मुझे फंडिंग नहीं मिल पाएगी, ये सेगमेंट ऐसा है, यहाँ पे ग्रो करना मुश्किल है और कंपटीशन बहुत है, बहुत मुश्किल लगेगी, you left that idea behind and you now working on the second idea. So at this stage, ये जो स्टेज थी जहाँ पे आपने उस आइडिया पे गिव अप कर दिया, वो ही स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उस स्टेज को अगर आपने कमिटमेंट के साथ उसको नेक्स्ट स्टेज पे लाने की कोशिश कर ली अगर, तो शायद यू कैन ब्रेक ऑल दोज रिकॉर्ड्स जो आपने शायद सोचे नहीं होंगे. क्योंकि देर आर मैनी पीपल अराउंड अस जो डेली एक नए आइडिया के साथ जगते हैं, एंड कॉलेज जाने के बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम द कॉलेज इवनिंग में वो आइडियाज एक चाय की चुस्की के बाद और कॉफी के बाद वो आइडियाज डंप हो जाते हैं ट्रैश Okay. कैन में, और फिर वो बोलते हैं छोड़ो यार, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टार्टअप आइडिया. दैट्स द रीजन के स्टार्टअप्स करने वाले कितने लोग हैं लेकिन वो स्टार्टअप्स की तरफ कमिटेड नहीं है, या फिर वो कमिटेड भी हैं तो दे आर इमोशनली अटैच टू दैट स्टार्टअप आइडिया बट नॉट प्रैक्टिकली. लोगों को इमोशनली अटैच भी रहना जरूरी है, बट प्रैक्टिकली सोच के चलना भी बहुत जरूरी है. पीपल डोंट थिंक प्रैक्टिकली के ये प्रोडक्ट अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, बट उसने कंज्यूमर सर्वे नहीं किया. So, sir, my next question is, how important is networking, and what's your advice on building a strong professional network while still in a college? Okay, so I think it's a very important question, or it's very important building block of any entrepreneurship journey. Networking, if you want to be a successful entrepreneur, then if you are a person who wants to be in his or her shell, if you don't want to get out of your shell comfort zone, then you cannot be a very good entrepreneur. I won't say that you cannot be an entrepreneur, but you won't be able to grow, or you won't be able to sustain for longer.
this is something which I realized. Let me tell you one thing कि मैं at the very early stages during my college, I had many friends in every branch in the Acropolis. I had many friends in IT. I had many friends in electronics, mechanical. I had major friends in all the streams. So with every person, with every friend of mine in the college, आई यूज टू लर्न न्यू थिंग्स. उनके साथ कभी पार्टी प्लान हो रही है तो उनके साथ जाना, उनसे नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना, उनसे नए कॉन्टैक्ट्स मिलना, उन और आपका नया कम्युनिकेशन बनना. तो व्हाट आई कैन से इज के आफ्टर स्कूल you get to learn ke how to make your network. You get to learn ke how to professionally communicate with people and how to take the advantage of your network. It is definitely very important. This you will this is the thing which you will realize at the later stage, or maybe after 10 years, when those people will be a value investor into your startup or into your business, when they will be like, uh, Harsh, you are into admissions. My cousin wants to go to Ivy League, and तू बहुत अच्छा कर रहा है. So please take care of my cousin here, please. So ये relation मैंने college में बनाया था, and during these 10 years we were in very light communication. But when it comes to need, that one of my friend realized कि मेरा friend admissions में है and he can do this job quite well. So he contacted me. So what I get, I got a customer, or I got a client, or I got an opportunity to make more networks with that student or with the family of that student. सो डोंट यू थिंक ये एक बहुत ही एक इंक्रीजिंग चेन है जो आपको नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचा देती है. तो नेटवर्क इज समथिंग which will help you build your business stronger and which will help you sustain in the business. If I talk about my other friends, तो मेरे पास during that time when I was in the need of funds, my friends were ready कि yes, Harsh, you if you really need financial help, I'm ready. तो यहाँ पे कौन काम आया? मेरे नेटवर्क एंड उसके नेटवर्क के नेटवर्क. दोज पीपल वर रेडी टू फंड मी इन माय बिजनेस. इट्स माय डिसीजन कि मैंने वो फंड यूज करे या नहीं करे, वो हेल्प यूज करे, बट दीज पीपल आर स्टैंडिंग विथ मी. इवन ऐसे लोग भी थे जो मुझसे बस हाई हेलो वाले वे में कनेक्टेड थे, बट दे न्यू के आई हैव स्टार्टेड समथिंग अमेजिंग एंड आई एम डूइंग अ रियली गुड जॉब, एंड दे वर रियली रेडी टू इन्वेस्ट. So network will help you reach to the heights. Network will help you reach to those opportunities which you never have imagined. Network will help you grow. Network will help you teach many things. You will get to learn lot many corporate etiquettes, no doubt. I have communicated or networked with people who are 20 years above my age, जिनके साथ मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाता हूँ. आई गेट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स. आई गेट टू कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट विद दोज पीपल जिनसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनसे मिलूंगा. आई नेवर थॉट कि आई वुड बी यू नो सिटिंग इन कनाडा एम्बेसी, जाके मैं बैठूंगा कनाडा एम्बेसी में, एंड दैट पर्सन विल बी माय बिगेस्ट वेल विशर सो फार. आज की डेट में, आज इफ आई हैव एनी वर्क रिलेटेड टू Canada, or any query I have, I can contact my friend in the Canada embassy. So मुझे वो चीज़ रियलाइज हुई धीरे धीरे. इवन आई कैन से कि मेरा स्टार्टिंग में नेटवर्क बिल्डिंग स्किल मेरी वीक थी. Eventually I realized that this network building skills is very important, very necessary for a successful business. If you have network, many people will remember your name, and आपका खुद का brand is the main brand rather than your brand name. आज लोग एडमिवो को कम जानते हैं, हर्षवर्धन को ज्यादा जानते हैं. If they have one query, if it is related to international admissions, then they will call Harsh. They won't, they don't even know कि मेरे institution का नाम क्या है. And this is really uh, this is a real story of many of my friends कि उनको आज भी मेरे ब्रांड का नाम नहीं पता है. They know my name, they know my profession,
एंड दे whenever they have a query they just call me, हर्ष यार ये मेरा कजिन है, तेरे को कांटेक्ट करेगा एंड बहुत अर्जेंट है, यू टेक केयर ऑफ इट यार। एंड आई एम रिलीव्ड के यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। तो वो पर्सन कहीं और कंट्री में बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट है, जो कजिन है, जो जो भी फ्रेंड है, वो आके मुझसे मिल रहा है एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड जब सक्सेसफुल एडमिशन आ जाता है तो उस पर्सन को एक अच्छा एक ग्रीटिंग्स मिलते हैं और एक अच्छा ब्लेसिंग्स मिलते हैं कि यार थैंक गॉड एक अच्छे काउंसलर से आपने कनेक्ट किया। एंड हमें क्या मिलता है, एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली उस पर्सन से नेक्स्ट 10 लोगों से कनेक्ट होने की, क्योंकि नाउ दैट पर्सन विल कनेक्ट मी टू दोज अनदर लेवल ऑफ पीपल जिन जो उसके पास आएंगे, तेरा एडमिशन कहाँ से हुआ, whom you will contact, you contacted, who helped you in this admission journey. So now ये you can realize कि ये नेटवर्क थिंग धीरे धीरे बढ़ के कितने बड़े लेवल पे it will reach and it will help you grow. So college days में networking is very important. You should be in touch with all kind of people, all kind of students who are into IT. You should not think कि मेरी ब्रांच वालों से मुझे मतलब है, मुझे दूसरी ब्रांच वालों से क्या मतलब। आज की डेट में ये चीज वैलिड नहीं है। even an IT guy or even a guy from electronics will be a block building uh, person for your successful startup. So yes, networking is very important, very very Okay. very important. सो सर इट इज नॉट रॉन्ग टू से एक सक्सेसफुल और बिजनेस बनाने के लिए या कौन अपने पीछे खड़ा है कौन अपने साथ खड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Can you repeat again please? मतलब कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने साथ कौन खड़ा है मतलब कौन अपने साथ काम कर रहा है कौन अपने साथ खड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, yes, no doubt. So, sir, my next question is you have led teams and managed operations across different sectors. What's Yeah. your leadership style and how has it evolved over the year? Okay. So your question is, K, how has my leadership style so far in these 8 to 9 years? How I Yes, have sir. handled the team, right? So I believe in, even if I'm right now I'm crossing 36, right? And the people who are working with me at Admivo all are below 30, right? So you can say I'm leading all Gen Zs, right? Yes, sir. And we know quite well that this generation is little sensitive towards challenges and pressure and a lot of pressure criticism, और इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा sensitive हैं आज की डेट में। So but still what my thoughts are कि my leadership style was very different, or you can say I never wanted to be a boss, and the boss who is always sitting in the cabin and not reaching out to people and not knowing what that particular new hiree or hired guy is doing on that table. I always am very curious about what my office boy is doing, what my guard is doing, what my other new interns are doing. I always am curious about everybody's operations, their responsibilities, and their happy moments. So I am a person जो अपने बॉस केबिन में कम बैठता है, जो अपने टीम के लोगों के साथ वो मोमेंट चेरिश करने में ज़्यादा बिलीव करता है, एंड उन लोगों के साथ हंसी मजाक करना। एंड आई डोंट enjoy I hardly enjoy being a director, but I always enjoy being a person of their age group. तो मैं उनके एज ग्रुप के साथ उनके साथ मिक्स होके उनको उनके साथ फन करता हूँ। आई एंजॉय विद देम। इवन अभी लास्ट ईयर में अपनी सेल्स टीम में टीम को के साथ मैं बैंकॉक थाईलैंड होके आया। मैं उन्हें ट्रिप पे ले जाता हूँ, मैं उन्हें स्टेकेशन पे ले जाता हूँ। आई ऑलवेज थ्रो पार्टी, आई ऑलवेज गिव देम सरप्राइजेस। सो बीइंग द लीडर, I don't want to be like a boss. That boss जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे, I never enjoyed that kind of bossy things. I always want to enjoy with my people. I want to smile with them. So you can say मेरी टीम के साथ में एक उनका बेस्ट फ्रेंड बन के रहता हूँ। I always want my team to grow first. एडमी वो तो अपने आप ग्रो हो ही जाएगा,
एडमीवो उस स्टेज पे आज तभी पहुंचा है क्योंकि आई ऑलवेज इंजॉय सीइंग माय पीपल ग्रोइंग, एंड उनकी ग्रोथ में उनको जो भी हर्डल आ रहे हैं वो हर्डल को उनके साथ बैठ के उनके साथ खड़े होके ओवरकम करना इज समथिंग आई ऑलवेज इंजॉय, कि मैं उनके हर्डल और उनके चैलेंजेस को उनके साथ फाइट करता हूँ और उनको उनसे बाहर निकाल के लाता हूँ. So yes, this is my leadership style. So I always want to see happy faces at my office. Even if somebody is sad, I won't enjoy at the office. I would ask, "Okay, what happened?" I love discipline, definitely. Even if I'm giving too much space to my people, I do not have strict rule and regulation at the office. But discipline is something my people should follow. If I am very open and very casual with my people, so it does not mean कि वो अपने लिमिट्स या फिर अपने डिसिप्लिन को भूल जाएं. दे शुड बी इन डिसिप्लिन सो दैट जो जूनियर्स जो इंटर्न्स काम कर रहे हैं दे ऑल्सो शुड लर्न how to be in corporate, how what kind of etiquettes they should follow at the corporate, even if they have immense space. If they are using their mobile phones for long time, we won't say at first, we won't say for the second time as well, we won't say for the third time, बट अगर उनकी तरफ से वर्क डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है और वर्क डिलीवरी में इशू आ रहा है तो डेफिनेटली समबडी वुड से. आई एम अ पर्सन हु इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ. सो एडमिवो में आपको लोग चाय पीते हुए नहीं दिखेंगे. चाय एडमिवो में बैंड है. Instead, they are allowed to take healthy drinks, and even we offer lemon, honey, ginger tea, so that their health will be, up to the mark. And we keep taking, this update ke how their health is going on, and what kind of bad habits that person has. Some कुछ लोगों का है कि दे ऑलवेज ऑर्डर फास्ट फूड ऑन डेली बेसिस, तो उनकी एक्टिविटीज पर ट्रैकिंग रखता हूँ मैं. एंड आई अच्छा। गिव देम एन आइडिया कि ये फास्ट फूड आगे जाके बहुत दिक्कत देगा. एंड आई डोंट जस्ट से कि ये फास्ट फूड अलाउड नहीं है, अगली बार से आना नहीं चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. आई गिव देम अ लॉजिकल आंसर टू देयर चॉइसेस, बिकॉज वो उनकी एज में मैं रह चुका हूँ. आई हैव एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. सो इट्स नॉट माई इट मेरा वो राइट नहीं बनता कि मैं उन्हें रोकूं और उनको रोक दूं और वो उस चीज़ों पे बैन लगा दूं. इंस्टेड आई ऑलवेज गिव देम एन आइडिया, और उनको मैं एक अच्छा सजेशन देता हूँ कि ये आगे जाके कितना डिजास्टर क्रिएट क्रिएट कर सकता है एट द लेटर स्टेजेस. सो हेल्थ वाइज आई एम वेरी पर्टिकुलर. ग्रोथ वाइज आई एम वेरी पर्टिकुलर. इवन एडमिवो में ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो उसकी ग्रोथ 3 साल से कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई. आई ऑलवेज कीप पोकिंग देम कि तुम रुके क्यों हो, तुम रुके क्यों, अभी तक तुम्हारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन है, कहाँ चैलेंजेस हैं, बताओ. तुम्हें इन 6 महीनों में इस स्टेज पे पहुंचना है एंड योर सैलरी विल बी एट दिस स्टेज. सो यहाँ पे आई ऑलवेज एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई पीपल ग्रोथ, एंड उनकी ग्रोथ ही एडमियो की ग्रोथ अपने आप बन जाएगी. आई डोंट think about my Admivo's growth, but my people growth is very important. That's what I love. That's what I enjoy. And मैं उनकी एज ग्रुप के साथ उनकी एज का बन के I always cherish moments with them, which I think is my best hobby. And दिन में एक बार उनके साथ कुछ कॉमेडी होना या फिर कुछ एक फन मोमेंट्स होना is something I enjoy. That's what makes me feel better every day. ओके सर। सर मतलब बॉस हो तो आपके जैसा जो मतलब कि फ्रेंड जैसा हो एंड पूरा मतलब कि हमको बिल्ड करने में हेल्प करे। Yes, yes. This is what I enjoy when you say this statement. वो मुझे सुनना अच्छा लगता है कि हाँ, our boss is good, our boss is amazing. So I always enjoy listening to this kind of statements. Yeah, sure. So, sir, my next question is, what are some misconceptions about entrepreneurship that you think students should be aware of? Okay, ये भी एक amazing question है. This is very interesting and very amazing question you asked. First myth is entrepreneurship में ये है, many people think कि you should have a business background. आज भी वो मिथ चल रहा है. इवन इफ देर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था बट दे आर मेकिंग सक्सेस स्टोरीज एवरीवेयर.
इतना जानने के बाद भी स्टिल पीपल आस्क मी एंड क्वेश्चन कि सर क्या मेरा बिजनेस बैकग्राउंड होना जरूरी है। मेरे फादर तो आ, आ, एक सिंपल सी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि सर मेरे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फादर मुझे हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है। वो सिंपल सी कोचिंग चलाते हैं घर पे, तो क्या पॉसिबल है? सो आई वुड से, if you are at this stage and if you are thinking about an entrepreneurship, so you should have one challenge ke, if I am at this stage and if I will be at the same stage after my 60s, then it's your mistake. अगर आप उसी स्टेज पर रह गए, देन इट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक। आपने उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया जो शायद आपके फादर ने आपको दी, या फिर आपकी लाइफ ने या फिर यूनिवर्स ने आपको दी कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते थे। आपके दिमाग में वो थॉट आया था। अगर वो थॉट आया है आपके दिमाग में, दैट मीन्स देर इज समथिंग और समवन फ्रॉम द अदर साइड गिविंग यू अ सिग्नल के यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज लोग जॉब कर ही रहे हैं, आराम से जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी 60s क्रॉस कर रहे हैं और पेंशन पे या फिर अपने चैलेंजिंग लाइफ को जी रहे हैं। उनको दिमाग में कभी बिजनेस करने का आइडिया आया ही नहीं। अगर आपके दिमाग में आइडिया आया है तो डेफिनेटली देर इज समथिंग, समवन और सम काइंड ऑफ एंटिटी इज देयर जो आपको सिग्नल दे रही है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो ये मिथ को मैं डेफिनेटली कैंसिल करना चाहता हूँ, या फिर आई वुड डिसअप्रूव दिस फैक्ट के यू शुड हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, you should have a proper financial help from your parents. No, it's not like that. I have built this four ventures from my own work at my startup. मेरे पेरेंट्स से मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, ना मैं लेना चाहता था। देर वॉज एन ईगो और देर वॉज एन एटीट्यूड और यू कैन से देर वॉज एन आइडिया कि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली बर्डन नहीं फील कराना चाहता था। सो आई ऑलवेज हैड अ थॉट के आई शुड स्टार्ट अर्निंग ऑन माई ओन। एंड मुझे अभी स्टार्टिंग चैलेंजेस में पैसा बनाने के लिए मुझे छोटे छोटे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मैंने भी आईएलटी क्लासेस ली, मैंने भी इंग्लिश क्लासेस पढ़ाई है, इवन इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस क्लासेस भी ली, जस्ट टू अर्न स्मॉल अमाउंट जो मेरे एक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में हेल्प कर देगा। तो देर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, और आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, आपके मॉम डैड अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इट्स टोटली रॉन्ग, आई डिसअप्रूव। यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली स्टार्ट स्टार्टअप। यहाँ पे जो मैंने पिछला आइडिया दिया था, यहाँ पे योर नेटवर्किंग विल प्ले अ बिग रोल। इफ योर पेरेंट्स डोंट हैव मनी डज नॉट मीन कि आपके पास आप स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते। इवन देर आर पीपल जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद जस्ट 99 रुपीज। मैंने सिर्फ एडमीवो का डोमेन परचेज किया था। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने में कौन रोकता है आज की डेट में? Yes, sir. इजी मार्केटिंग आप कर सकते हो। मैंने वेबिनार लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हैं। गूगल मीट नहीं था उस टाइम पे, जूम था, जूम पे हमने मीटिंग ली है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था। तो डेफिनेटली रिसोर्सेस पे फोकस करो। ये मत फोकस करो कि मुझे ऑफिस पहले ही खोल लेना है, उसमें मेरे रेंटल कहाँ से आएगा, ये सर्विसेज कहाँ से अवेल करूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप घर बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हो। ये फ्री सर्विसेज आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है, और सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपना स्टार्टअप जर्नी शुरू कर सकते हो। सेकंड, सारे स्टार्टअप्स तो बैंगलोर में हो रहे हैं, सारे स्टार्टअप्स तो मुंबई में हो रहे हैं, सारे स्टार्टअप तो सिलिकॉन वैली और दिल्ली में हो रहे हैं, कोलकाता में हो रहे हैं। मैं तो मंदसौर रहता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्टअप कैसे कर सकता हूँ? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देर आर मैनी पीपल जो ऐसी सिटीज से निकले हैं और वो स्टार्टअप अपना रन कर रहे हैं। क्यों मंदसौर में इंटरनेट नहीं है क्या? मंदसौर में जियो फाइबर नहीं है क्या? मंदसौर में 5G नेटवर्क नहीं है क्या? आज की डेट में शायद आपने एक अफ्रीकन एक इन्फ्लुएंसर देखा होगा जो बहुत सारे डांस स्टेप्स और हिंदी लैंग्वेज, Yes, sir. हिंदी सॉन्ग्स पे डांस करता है। देखा है उसको? अफ्रीकन गाय है वो। और दे आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल Yeah. हट, और बहुत सी छोटी सी झोपड़ी में दे हस्बैंड वाइफ, दे बोथ डांस एंड दे आर लाइक इन्फ्लुएंसर्स। ब्लू Yes, sir. टिक वेरीफाइड प्रोफाइल है उनकी और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। आज वो कितना कमा रहे हैं? हिंदी हिंदी सीख गया वो बंदा, इतना दूर रह के अफ्रीकन सिटी में, अफ्रीकन किसी विलेज में वो है, और वो हिंदी गानों को इतने अच्छे से बोल के वो डांस कर रहा है। तो अगर वो बंदा ये सब कर सकता है इतनी दूर बैठ के, तो हम स्टार्टअप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं।
डेफिनेटली कर सकते हैं। और आप किसी भी लोकेशन पे हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी मेट्रो सिटी में होना जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपने जोहो के बारे में सुना है, जोहो यस सर। जोहो प्लेटफॉर्म इज अनदर कॉम्पिटिटर ऑफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का अगर हम नाम लें, तो जोहो ने अपना हेडक्वार्टर पहले इंडिया खोला, देन वो कैलिफोर्निया शिफ्ट किया, देन वो वापस हेडक्वार्टर उन्होंने एक विलेज में शिफ्ट कर लिया ले जाके। अगर आप जोहो के फाउंडर की स्टोरी अगर जाके देखेंगे तो वो एक विलेज से पूरा हेडक्वार्टर में मेंटेन कर रहे हैं, एंड वो बिलीव करते हैं कि हम छोटी प्लेसेस से हैं, और छोटी प्लेसेस से हम इन छोटे शहरों से निकल के हम बड़े बने हैं, और हम इन शहरों में ही रह के ग्रो करना चाहते हैं। तो वो पूरा जोहो का पूरा मैनेजमेंट ही वहां से रन हो रहा है। तो यस, एंटरप्रेन्योरशिप डजंट रिक्वायर यू टू बी इन अ मेट्रो सिटी। रिसोर्सेज की कमी कहीं पे भी फुलफिल हो सकती है, और आज आज की डेट में अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, यू हैव एम्पल ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल, जो शायद आज से 15 साल पहले अवेलेबल नहीं थी, आज से 10 साल पहले बहुत कम अवेलेबल थी, जो हमने फेस करी। आप तो बहुत ईजी है चीजें करना। आपके पास तो चैट जीपीटी आ गया, आपको तो डीप सीक आ गया, आपके पास तो ग्रॉक आ गया है, और क्या चाहिए आपके पास? सारी स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेस मॉडल बनाने के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यस, इट्स वेरी इजी। पीपल इफ थिंक के स्टार्टअप करना डिफिकल्ट है, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी, वेरी इजी। ओके सर। डू यू थिंक आई एम मिसिंग एनी क्वेश्चंस जो स्टार्टअप सोचने वालों के दिमाग में आता है और मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं? तो यू कैन आस्क। ओके सर। So, sir, my next question is, what's your one message you would like to leave to our students of Acropolis College that they embark on their own personal journey of entrepreneurship? My one message to my or all Acropolian students is कि you are lucky that you are in Acropolis, and you are lucky that your college premises or your authorities are providing so much of facilities. I guess शायद वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी ओपन हो चुका है, Yes, sir. राइट? वहाँ पे एआई लैब भी ओपन हो चुकी है, स्टार्टअप की लैब भी ओपन हो चुकी है। जो मैंने शायद पिछले साल विजिट किया था, तो वहाँ पे एक स्टार्टअप लैब भी है जहाँ पे पीपल कैन वर्क ऑन दैट स्टार्टअप्स। यू आर लकी दैट यू हैव सच एन अमेजिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर विच इज यू नो डियर सर, हमारे अतुल भरत सर, Okay. जो जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। एंड ही इज़ द पर्सन जो अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए उस लेवल तक जाते हैं जो दूसरे लोग नहीं जा पाते। तो मैंने उनके उस वर्क को देखा है, नो डाउट। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑल दी मैनेजमेंट स्टाफ, और अगर मैं सब लोगों की बात करूं तो गौरव सोजातिया सर, अशोक सोजातिया सर, दीज आर द अमेजिंग पीपल जिन्होंने एक्रोपोलिस को उस लेवल से शुरू करके एक अमेजिंग लेवल पे लाके खड़ा किया है। ये सब सारी अपॉर्चुनिटीज बाहा वाले टाइम पे जिन अथॉरिटीज ने मुझे ये तक राइट दे दिया कि जो कॉलेज का स्टाफ है अगर आपको मना करता है तो यू डायरेक्टली टेक माय नंबर एंड कॉल मी। तो you are lucky that you are in Acropolis. Second, you are lucky that you are in this generation where you have ample of help available, which is even a digital help available. तुम्हें किसी mentor की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास mentors already बैठे हुए हैं, which is these AI platforms. Thirdly, अगर आप if you want to be an entrepreneur, you have to have a great amount of patience, great amount of confidence on yourself, great amount of commitment towards your idea. अगर आइडिया आपका फेल बता रहे हैं लोग, और इफ यू थिंक योर आइडिया कैन वर्क, और इफ यू थिंक यू आर एट द राइट path, then your idea can work. Don't believe on others ideas or other suggestion. If they are just a suggestion giver, or they are just doing their job and they are giving you a suggestion for startups, then उनसे आइडिया लेने का मतलब क्या है? तो आपने अगर स्टार्टअप का आइडिया लिया है, और आपने या फिर स्टार्टअप का आइडिया सोचा है, तो डिस्कस विद दोस्त जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वर्क कर चुके हैं, उनसे डिस्कस करें, उनसे सजेशंस लें आप। एंड उससे पहले आपको अपने कमिटमेंट पे भरोसा होने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की पे भरोसा होने की ज़रूरत है। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि देर इज नो गोइंग बैक। इफ यू वांट टू गो ऑन अ जर्नी टूवर्ड्स योर स्टार्टअप,
then there is no going back. आपने अगर ये सोच रखा है कि कुछ नहीं हुआ तो चलो जॉब कर लेंगे, देन आपने पहले ही सोच लिया कि आप अपने स्टार्टअप पे फोकस नहीं करने वाले, आपकी फोकस जॉब पे रहेगी। द मोमेंट यू विल स्टार्ट लूजिंग मनी, यू विल, आप खुद से ही धोखा देने के लिए रेडी बैठे हो, यू विल चीट फ्रॉम योर सेल्फ। सो बी कमिटेड टू योर स्टार्टअप and be dedicated, hardcore dedicated, hardcore committed to your startup. This is the main equation of a successful startup. सर बट आपकी So जर्नी अभी ट्रूली इंस्पायरिंग है, मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि मतलब कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। मैं भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखता रहता हूँ, मेरे पास सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बट आपकी जर्नी से मेरे को एक आइडिया मिला है कि कभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है तो उसको ऐसे स्टार्टअप में उसको ले जा सकता हूँ एंड बिल्ड कर सकता हूँ। definitely, definitely. Thank you so much, sir, for sharing your journey and insights with us today. It's been truly inspiring to hear about your experience, and our listeners will hope, to all our listeners, we hope you found this podcast as motivating as we did. Stay tuned for more episodes, and thank you so much, sir, for answering every entrepreneurship questions which we asked. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, and I really enjoyed discussing with you. And I hope my Acropolian students and other people will get benefited from the discussion that we had just now. And if they want to know more or they want to discuss any startup ideas with me, they can follow me on Instagram. Harshvardhan.singx is my Instagram ID. And they can come straight away to me for any queries if they have. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay. Thank you so much.